His work is widely followed by school and college students across the country. Shobit Nirvan is also the founder of NextTalkers, one of India's most successful edtech platforms for class 9 and 10. The platform is known for delivering high quality, affordable academic preparation and has helped millions of students improve their performance and confidence in studies. Mission Jeet is a newly launched initiative by Shobhit Nirvan aimed at addressing gaps in India's current education ecosystem. The mission focuses on student mindset, career awareness, skill building, and real-world guidance beyond textbooks. Through campus interactions and discussions, Mission Jeet encourages students to think independently, ask questions, and explore opportunities aligned with their strengths. What makes him truly special is his real, relatable journey, from academic struggles to success, from confusion to clarity. Through his sessions, he helps students understand how to choose the right career path, How to stay focused and disciplined in studies, how to overcome self-doubt and fear of failure. and how to turn passion into achievement. His words are practical, powerful, and deeply motivating, especially what today's students need. Aditi Devo Bhava. Gayatri Public School strongly believes in this dictum and follows the tradition of felicitating its guests. May I now request our respected principal, Ms. Monica Singh, along with Principal Unit 1, Mrs. Beena Upadhyay, along with our Vice Principal Ma'am, Ms. Rinku Jain, to kindly come forward for the felicitation of the guest. Shobit Bhaiya, Shobit Bhaiya, Shobit Bhaiya, Shobit Bhaiya, Shobit Bhaiya, Shobit Bhaiya. My speech was planned at the end of the program. But seeing your enthusiasm, it was very clear that you are not going to listen to me in the end. So I took the opportunity before Shobit takes in. So I took the opportunity, first of all, I welcome each and every student who has come up here. Shobit, you have made wonders. So I really welcome. Shobit is such a great figure, and I think that you all relate to him, and this talk is really going to enlighten all of us, and stage goes to you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, without taking much more of your valuable time, it is now my proud privilege to invite our esteemed speaker, Mr. Shobit Nirvan, to take the stage and enlighten us with his thoughts, experiences, and wisdom. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you so much. क्या हाल चाल है बच्चों? कितने बच्चे आगरा से हैं? आगरा के आसपास मथुरा वृंदावन से भी बच्चे आए हैं।
सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी बच्चे आगरा के बाहर से आए हैं, मैं भी आगरा के बाहर से दिल्ली से आया हूँ, ठीक। तो मिशन के बारे में काफी चीजें आप सभी को पता चल गई होंगी, है ना। दिल्ली में हम मिशन जीत के बारे में आई गेस हेलो हेलो, हाँ परफेक्ट। तो अब थोड़ा शांत हो जाओगे तो मैं बोलूँगा, है ना। देखो मैं स्कूल में हूँ, पर स्कूल में मैम की तरह नहीं बोलूँगा, फिंगर होने और लिप्स और वो सब, ठीक है। तुम लोग मेरे से जितनी मस्ती करते हो क्लास में, वो सब मेरे को पता है, ठीक है। चैट नहीं आ रही भैया, लैग हो रहा है भैया, स्कूल है, मैं मानता हूँ, ठीक है स्कूल है, पर आज संडे, तो एक बार वापस एनर्जी के साथ देखो क्या हाल चाल है, तो तुम्हें बढ़िया ही बोलोगे, तो मैं एक बार वापस क्या हाल चाल बोलूंगा और तुम जितना तेज बोल सकते हो उतना तेज बोल के इसको शुरुआत करेंगे। क्या हाल चाल है बच्चों? अब लग रहा है ना यार कि हाँ एनर्जेटिक ऑडियंस है। तो मिशन जीत की शुरुआत हम लोगों ने करी 4 जनवरी को। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक इंडिया टूर की। इंडिया टूर बेसिकली हम क्यों रखना चाह रहे हैं, जिससे कि मैं जाके बच्चों से, उनके पेरेंट्स से ये डिस्कशन कर पाऊं कि ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है, ये जो मिशन पे हम लोग निकले हैं जेई और नीट के लिए, नेक्स्ट टॉपर्स इज फॉर क्लास 9, क्लास 10 स्कूल स्टडीज, स्कूल एग्जाम्स के लिए। आगे जो आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे जेई या नीट की तैयारी करते हैं, उस मार्केट में पहले तो हम नहीं आ रहे थे, फिर उसके बाद जो पीछे कुछ इंसिडेंट्स हुए, उन सभी से आपको पता चला कि हम लोग अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इंसान है, अभी मैं हूँ, ठीक है, कोई और नहीं है मिशन जीत में। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे और धीरे धीरे इस इनिशिएटिव को हम आगे लाएंगे। तो पैरेलली लोग भी जुड़ रहे हैं और पैरेलली मैं चाहता हूं कि मैं जाके डिस्कशन करूं कि आप लोगों का क्या विचार है इस मिशन से, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है मिशन जीत से, और कैसे हम इसको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आज की ये जो मतलब पहला सिटी हमने आगरा चूज करी है, क्यों चूज करी है, इसका भी एक रीजन था। एक तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो इतने कम टाइम में हमें कुछ सिटीज चूज करनी थी। सबसे पहला थॉट मेरा गायत्री पब्लिक स्कूल क्यों गया, इसके पीछे रीजन ये है, आज से 3 साल पहले 2022 में मोस्ट प्रोबेबली 1 जून मैम ने बताया दिया, 1 जून 2022 मैंने ये सोचा कि जब मेरा नेक्स्ट टॉपर्स नहीं था, जब इंडिविजुअल चैनल था शोभित दरवान के नाम से, और इतना बड़ा चैनल नहीं था, छोटा सा चैनल था, तब मैंने ये सोचा था कि ऐसा करेंगे, इंडिया टूर रखेंगे 2022 में। तो मैंने गायत्री पब्लिक स्कूल पे बात करी, मैंने कहा कि देखिए मेरे पास पैसा तो नहीं है अभी देने के लिए, और बाहर ऑडिटोरियम बहुत लाखों रुपए मांग रहे हैं, आप ऐसा करिएगा, आपके स्कूल के भी बच्चे मेरे को जानते होंगे, उनको भी बिठा लिएगा, कुछ बच्चे शायद बाहर से भी आ जाएंगे, आप उनको भी थोड़ी जगह दे देना, वो भी बैठ जाएंगे, और एक मोटिवेशनल सेमिनार होगा। तो पूरे इंडिया में मैंने बहुत सारे स्कूल से बात करी, गायत्री पब्लिक स्कूल सबसे पहला स्कूल था जिसने इस चीज के लिए एग्री करा, और उन्होंने मेरे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। प्रद्युमन जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, जितने भी बच्चे गायत्री पब्लिक स्कूल के होंगे जानते होंगे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी उस समय। उन्होंने मेरे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि कुछ भी स्कूल से नेगेटिव बात मत बोल देना, बाकी जो तुम्हें मोटिवेशन करनी है, जो तुम्हें रखना है वो रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस साल जब मैंने मिशन जीत के लिए सोचा कि मैं इंडिया टूर पे जाऊं, फिर से मेरे दिमाग में सबसे पहला गायत्री पब्लिक स्कूल आया, फिर से मैंने कांटेक्ट करा और उन्होंने बिना किसी क्वेश्चन के एग्री कर दिया इस सेमिनार को करवाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गायत्री पब्लिक स्कूल। तो आगरा से एक जुड़ाव है, मतलब
उस साल भी सबसे पहला सेमिनार मैंने करा था। मैंने कहा इस साल भी सबसे पहला आगरा से ही करेंगे। बहुत प्यारा शहर है आप लोगों का, है ना, और मेरे तो बहुत पास है, तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं हम लोग। तो मैं आ जाता हूँ घूमने थोड़ा बहुत। ताजमहल बहुत बार देख लिया है मैंने, है ना, ओलिविया को लेके आ जाते हैं कभी। तो इसलिए आगरा से शुरुआत हुई है। आज का ये जो सेमिनार है, आज का जो ये मिशन जीत का सबसे पहला सेमिनार है, इसकी शुरुआत करूंगा मैं एक स्टोरी से। आप में से कितने बच्चे क्लास 9 10 के हैं? मैक्सिमम बच्चे 9 10 के। 11 12 के भी कुछ बच्चे हैं? 11 12 के बच्चे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो 11 12 वाले तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस जब मैं बता रहा हूँ तो उनको दुख समझ में आएंगे कि हाँ यार भैया हमारे बारे में बोल रहे हैं। और 9 10 वाले तुम्हारे लिए क्या फ्यूचर में होने वाला है वो थोड़ा बहुत मैं तुम्हें सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। शुरू में 10-15 मिनट मैं बोल करूंगा तुम्हें, फिर 10-15 मिनट के बाद मैं तुम लोगों से भी कुछ क्वेश्चंस, है ना, पेरेंट्स भी आए होंगे साथ में, उनके जो भी सजेशंस है दिमाग में बिठा लो प्लीज। जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी बच्चे हैं दिमाग में अपने कुछ सजेशंस रख लो प्लीज। मेरे को आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है मिशन जीत के लिए। तो एक स्टोरी शेयर करनी है। 2002 में एक बच्चा था, उसने सोचा कि वो जेई और नीट मतलब जेई की तैयारी करेगा, आईआईटी में जाना चाह रहा था। ठीक है, बहुत छोटे से गांव से एक बच्चा था, राजस्थान में एक गांव से। तो उस बच्चे ने सोचा कि मैं जेई की तैयारी करता हूँ। बहुत छोटा गांव था, पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा पैसा नहीं था घर में। तो उस बच्चे ने सोचा कि यार तैयारी करने के लिए राजस्थान में उस समय में कोटा इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। एक कोचिंग थी उस समय की, सबसे पहली कोचिंग जो कोटा की थी, बंसल कोचिंग के नाम से। तो वो वहां पे गया, वहां पे जाके बातचीत करके उसको वहां पे एडमिशन मिल गया। 11th क्लास में वो बच्चा था, ज्यादा पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं, नॉर्मल जैसे एवरेज बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो उसने सोचा कि मैं जाके कोचिंग करूंगा। क्लास 11th में, क्लास 12th में उस बच्चे ने जेई की कोचिंग करी। जेई की कोचिंग करने के बाद उसने आईआईटी का एग्जाम दिया। उस समय आईआईटी का अलग से एग्जाम होता था, तो उसने आईआईटी का एग्जाम दिया। आईआईटी का एग्जाम देने के बाद उसकी अच्छी रैंक नहीं आई और उसको सिलेक्शन नहीं मिला। उसने सोचा 1 साल और ट्राई करता हूं। अब 2 साल मैंने चीजें समझ ली हैं, इससे पहले मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। 11वीं 12वीं में तो समझ ही नहीं आया कि तैयारी कैसे करनी है। अब मेरे को पैटर्न समझ में आ गया, एग्जाम कैसे होता है ये समझ में आ गया, ये पता चल गया कि मेहनत कैसे करनी है, ये पता चल गया सिलेबस क्या है। उस समय तो कुछ भी नहीं था ना यार, क्या इंटरनेट क्या कुछ चीज। तो टीचर से पूछ के बच्चे तैयारी करते थे वहां पे ऑफलाइन जाके। तो उस बच्चे ने सोचा कि एक बार और ट्राई करता हूँ। तो उसने 1 साल का ड्रॉप ले लिया क्लास 12 के बाद, और ड्रॉप लेके उसने जी तोड़ मेहनत करी, मतलब पागलपंती वाली मेहनत करी। उसने सोचा है इस साल तो आखिर, क्योंकि आईआईटी में एक और अटेम्प्ट मिलता है, उसके बाद अटेम्प्ट नहीं मिलता है, तो उसके पास आखिरी एक मौका था। उसने सोचा इस साल एक और मौका है, अच्छे से मेहनत करता हूँ। जो टीचर्स ने बताया वो सारी चीजें उसने करते गया। नॉर्मल जो भी होमवर्क मिलता है होमवर्क वो करता गया, टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करता गया। अब आईआईटी का एग्जाम हुआ। आईआईटी का एग्जाम हुआ 2002 में, मतलब 2002 में उसने जो फिर से अटेम्प्ट दिया। 2002 के आईआईटी के एग्जाम में गया, वो जाके अटेम्प्ट दिया, अटेम्प्ट लेके वापस घर पे आया। अब जब रिजल्ट आता है ना, तो जितनी भी कोचिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, टॉप बैचेस में जाते हैं, टॉप बैचेस का रिजल्ट देखते हैं, उनके रिजल्ट खुद वेरीफाई करते हैं, रिजल्ट वेरीफाई करके बता देते हैं कि भाई हमारी कोचिंग से ये रैंक आई है, हमारी कोचिंग से। उस समय की बात कर रहा हूं, तब खरीदी नहीं जाती थी। तो सारी कोचिंग्स वालों ने अपनी अपनी रैंक बता दी। एक ने बता दिया मेरी रैंक 2 आई है, एक ने बता दिया मेरी रैंक 3 आई है, एक ने बता दिया मेरी 4 आई है, एक ने बता दिया 5 आई है। ऐसे अलग अलग कोचिंग्स ने, पूरे देश भर में अलग अलग कोचिंग्स ने अपनी रैंक अनाउंस कर दी। कोई भी बच्चा रैंक 1 नहीं आया, क्योंकि टॉप बैचेस में सब लोग देख रहे थे, टॉप बैचेस में कोई भी रैंक 1 दिखा ही नहीं। शाम को ये जो बच्चा है इसने बंसल में फोन करा कि सर मेरी रैंक 1 आई है और मैं आप ही के कोचिंग में पढ़ा था, नीचे बैच में था। इस बच्चे का नाम था दुंगरा राम चौधरी, आईआईटी जेई 2002 ऑल इंडिया रैंक 1। ये स्टोरी मैंने क्यों बताई है तुम्हें? कभी भी ना अपनी कैपेबिलिटी को जज मत करना, ठीक है? तुम सभी लोग अभी उस एज ग्रुप में हो कि तुम्हारे आसपास वाले लोग तुम पे बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो दोस्त हो जाए, चाहे घर में लोग हो जाए, चाहे रिश्तेदार हो जाए,
तुम उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होगे, तुम उनसे बहुत चीजें सुनोगे और अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना लोगे कि यार शायद मेरे से ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत लोग होंगे, देखो शायद माँ बाप और कुछ टीचर्स को छोड़ के कोई इंसान तुम्हारे आसपास ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि तुम उससे ऊपर उठ जाओ, तुम उससे ऊपर बढ़ जाओ। तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे कि हाँ यार मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, कुछ टीचर्स हैं जो चाहेंगे कि हाँ यार हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है, हमारा पढ़ा हुआ बच्चा आगे जाना चाहिए, है ना। और कोई नहीं चाहेगा कि तुम उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। सारे रिश्तेदार तुम्हारे यही चाहेंगे हम बर्बाद है तो ये भी बर्बाद ही रहे। तुम्हारे दोस्त ये चाहेंगे सो कॉल्ड जो आज तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, इन फ्यूचर बहुत सारे दोस्त ऐसे निकलेंगे जो ये चाहेंगे कि यार इसका पैकेज मेरे से ज्यादा ना लग जाए, मेरा पैकेज हमारी जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इन लोगों का इन्फ्लुएंस कभी मत आने देना, अपनी कैपेबिलिटी को कभी मत जज करना। इसी एग्जाम्पल को सेट करने के लिए ही मिशन जीत आया है। अगर मैं मिशन जीत की भी बात करूं तो हम लोगों ने पहले काफी सोचा कि यार नहीं जाएंगे यार, छोड़ो बेकार मार्केट है, बहुत गंदी मार्केट है, बहुत ट्रोल होंगे हम लोग, बहुत हमारे बारे में नेगेटिव होगा, डर है इस मार्केट में। एट दी एंड हमने इस चीज को इसलिए उठाया क्योंकि आपके जो प्रशांत भैया उन्होंने यही लाइन बोली, उन्होंने कहा शोभित अगर अब हमने हार मान ली ना तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा बच्चों के सामने, इतने सारे बच्चे हमें फॉलो करते हैं, उनके सामने एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि जो चीज मुश्किल है ना उसको छोड़ देना चाहिए। हमने कहा ये एग्जाम्पल नहीं सेट होना चाहिए, मुश्किल है, ट्रोलिंग होगी, इमेज के ऊपर बात आएगी, डर है, बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर हम पीछे हट गए ना तो बच्चों को ये लग जाएगा कि यार अगर हमारा मास्टर ही पीछे हट गया, अगर हम जिसको रोल मॉडल मान रहे हैं वो ही एक मुश्किल चीज के पीछे हट गया है तो फिर बच्चे भी इसमें आगे नहीं जाएंगे, बच्चे भी बहुत सारी मुश्किल चीजों से डरना शुरू कर देंगे। ये एक रीजन है कि हमने मिशन जीत की शुरुआत करी। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लोग सोच रहे होगे कि यार भैया अगर मेरा मतलब बच्चों के दिमाग में आता है कि भैया अब तो सबको पता चल गया है, रिश्तेदारों को भी पता चल गया, 11th के जो बच्चे वो चीज 11th 12th के बच्चे रिलेट करेंगे। मान लो तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम सोचोगे कि यार आसपास रिश्तेदारों को पता चल गया, भैया अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, भैया वो सब लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। मेरा काम उड़ रहा है इंस्टाग्राम पे, तुम्हारा तो 4-5 रिश्तेदार उड़ाएंगे, मेरा तो पूरा भारत उड़ा रहा है। समझ रहे हो, डरना नहीं है यार, डरना नहीं है, उड़ाने तो मजाक, क्या हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स क्या हो जाएगा, ठीक है 4 लोग अलग हो जाएंगे, हो जाओ भाई, क्या हो जाएगा, कुछ 4 हेटर्स बन जाएंगे, बन जाने दो, तुम अपने गोल से मत हटो। तुमने जो एक बार ठान लिया ना उससे पीछे मत हटो। अभी बहुत सारे बच्चे तुम बोल रहे हो कि क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं, क्लास 9 10th के बच्चों मतलब 10th के जो बच्चे हैं, अभी तुम्हारा एग्जाम्स होगा बोर्ड का, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम बहुत आसान आता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, तुम सबके भर के नंबर आने वाले, बहुत सारे नंबर आने वाले, अच्छे नंबर आने वाले, तुम सारे 100/100 तो मैथ्स में बहुत सारे बच्चे पढ़ोगे, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है, 10th में बहुत अच्छा कर लोगे, 10th में बहुत अच्छे एग्जाम में नंबर आ जाएंगे, दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि जब वो नंबर आते हैं ना तो बच्चे उसको सर पे चढ़ा लेते हैं। अब वापस 11th वाले रिलेट करेंगे, ऐसा लगने लग जाता है कि यार टॉप कर दिया हमने, तो हमने इतने अच्छे नंबर ले आए अपने एग्जाम में, अब तो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसी फीलिंग आती है। जब हमारा क्लास 10th का रिजल्ट आया था तो मैंने कई बार ये स्टोरी बताई भी है, मैं बाकी और बच्चों को भी बताना चाहता हूँ। तो मैं तो कोटा में था, जेईई की तैयारी कर रहा था, जेईई की तैयारी करते हुए बीच में रिजल्ट आता है, जून जुलाई में रिजल्ट आता है, तो हमारा जून में रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आया तो मेरी 10 सीजीपीए आ गई, उस समय सीजीपीए सिस्टम होता था, 10 सीजीपीए मतलब बिल्कुल टॉप सीजीपीए, तो मेरी 10 सीजीपीए आ गई। अब मेरी 10 सीजीपीए आई तो मैंने सोचा बस कौन है कोटा में मेरे से ऊपर, अबे कौन है ये टीचर जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मुझे सबसे ज्यादा आता है। मैंने 10 सीजीपीए स्कोर करी है, मैं बिल्कुल मस्त मौज में जाके क्लास में सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गया। मैंने कहा आज जब सर आएंगे और पूछेंगे कि कौन बच्चा है जिसकी 10 सीजीपीए आई है, पूरी क्लास बैठी रहेगी, सिर्फ मैं खड़ा हूंगा। ये सोच के मैं क्लास में गया, पहली बात तो टीचर ने पूछा ही नहीं, उनको क्या फर्क पड़ता है, हमने बताया, हमने कहा सर 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 वो ना एग्जाम का रिजल्ट आया सर, तो कह रहे कौन सा एग्जाम का रिजल्ट आया, कोचिंग में एग्जाम हुआ है? नहीं सर वो 10th का बोर्ड हुआ था सर, सीबीएसई लेती है एक एग्जाम, आपको पता होगा। अच्छा हाँ भाई बताओ कौन है वो, 10 सीपीआई सीजीपीए क्या कहते हैं जो भी है बताओ।
मैं फुल स्लो मोशन में खड़ा हूँ, पीछे मुड़ के देखा मैंने पूरी क्लास खड़ी हुई, पूरी क्लास खड़ी हुई 10 CGPA लेके आई हुई। और 10 CGPA छोड़ो, स्टेट टॉपर है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्कूल टॉपर, सिट, मतलब हर जगह का टॉपर उस क्लास में बैठा हुआ है। तो वहां पे वो घमंड टूटता है, पर वो घमंड जब तक रहता है, जब तक ये घमंड नहीं टूटता ना, जब तक ये घमंड रहता है तब तक बहुत देर हो जाती है। मैं तुम्हें एक और इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे हम तुम्हारी ओरिएंटेशन लेते हैं ना, जब बैच वगैरह शुरू होता है तो ऑनलाइन ओरिएंटेशन होती है, हम तीनों खड़े हो जाते हैं, तो उनसे बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं। तो जब हम कोटा में गए थे तो हमारा भी ऐसे ओरिएंटेशन हुआ था, हमारी जेई की कोचिंग शुरू होनी थी, तो ऐसे ही हम भी ऐसे ही सब बैठे हुए थे। वहां पे जो एचओडीज वगैरह थे वो आके मतलब बता रहे थे कि यार कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज है। मुझे नहीं पता क्या बता रहे थे, क्योंकि मैंने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? ये घमंड। पीछे बैठा हुआ था बिल्कुल कोने में मैं, ठीक है। मेरे साइड वाला दोस्त, उस समय स्मार्टफोन का इतना चलन नहीं था, तो मेरे साइड वाला सैमसंग का एज वाला फोन लेके आया था। तो मैं उसके फोन देख रहा था, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया फोन है, क्या फोन है। फिर उससे पूछा वो कौन सा गेम है वो खिला दे। टीचर बोले जा रहा है, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या चीजें तो उन्होंने बोली। जब रिजल्ट आ गया और उसके बाद धीरे धीरे 11वीं आगे बढ़ती रही, जब दिखा कि यार 11वीं तो एक भारी चीज है यार, 10वीं की तरह नहीं है। जैसे 10वीं में हम कर लेते थे ना कि आखिरी के 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन हो जाती है ना, 14 डेज में पूरा मैथ्स खत्म हो जाता है। 11वीं में नहीं होता ऐसे, 14 डेज में तो एक चैप्टर खत्म होता है। तो मैं भी यही सोच के कि यार ठीक है कर लेंगे, ऐसे मैंने पूरी 11वीं निकाल दी। जब पूरी 11वीं निकाल दी, जब पता चला कि अगर बिना किसी क्या कहेंगे से घमंड के, बिना किसी वो हवाबाजी के, अगर मैं शायद उस समय बैठ के टीचर्स की बातें सुन लेता, शायद मेरे को थोड़ा बहुत पता चल जाता। पहली बात तो मेरे को नहीं पता था उन्होंने क्या बोला, पर अगर मैं सुन लेता तो वो मेरे भले के लिए तो गाइड कर रहे थे यार। वो यही तो बता रहे थे कि यार 11वीं 12वीं में कोटा में दिक्कतें आती हैं बच्चों को, 11th 12th में, पर हम लोग एक अलग लेवल पे होते हैं, अलग कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि यार हम सुनते ही नहीं आगे सामने वाला क्या बोल रहा है। अभी मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, 11वीं में जाते ही माहौल जाता है, आसपास वाले बच्चे हो जाएं, तुम्हारा पीयर ग्रुप हो जाए, माहौल ही ऐसा बन जाता है कि हर एक बच्चा अपने आप को बाप समझने लग जाता है। उसे लगता है यार मेरे को सब पता है, कौन है ये टीचर। हमें तो भाव भी नहीं देते, नेक्स्ट टॉपर्स को भाव नहीं देते, 11वीं 12वीं के बच्चे, पता है तुम्हें। उन्हें लगता है भाई इनको क्या पता होगा, तो 9वीं 10वीं के मास्टर है, इसे क्या पता, ये तो रूट 3 इरेशनल प्रूव करवाता है। नहीं हंसी, तुम हंस रहे हो पर ये रियलिटी है। हमें भाव नहीं देते, सोचते इसे क्या ही पता होगा यार, असली तो हमें पता है। हम 11वीं में जा रहे हैं, हम इस फलाना कोचिंग में जा रहे हैं, उस फलाना कोचिंग में जा रहे हैं, हम तो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हम तो एनटीए की, जेईई की, नीट की तैयारी कर रहे हैं। उन छोटे टीचरों से कोई पूछेंगे? यही घमंड होता है, यही घमंड मेरे भी अंदर था। पूरी 11वीं यही मेरे अंदर घमंड था। मेरे को लगता था कि यार इससे कौन पूछेगा यार, पढ़ने का तरीका हमें पता है, 10 CGPA हमारी आई है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। मैंने तुम्हें बोला कि हाँ यार अपनी कैपेबिलिटी पे जज नहीं करना है, अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं करना है, ये अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस जहां जाता है ना, वहां पे 11वीं बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। वहां पे चीजें ऐसा लगता है कि यार साल निकल गया पर कुछ समझ में नहीं आया, साल निकल गया पर चैप्टर छूटे जा रहे हैं, साल निकल गया पर बैकलॉग्स हुए जा रहे हैं। और 11वीं का एक एक चैप्टर एक एक डेढ़ महीने चलता है, कैसे करेंगे क्या बैकलॉग कवर, तो पूरा वहां पे समाप्त हो जाता है चीजें। तो इसलिए जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज है ना, मैं इसलिए मिलना चाह रहा था। यही सारे एक्सपीरियंसेस है यार, मैं सामने अपनी गलतियां शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे से हुई हैं, जो मैंने करी हैं, वो गलतियां मैं तुम्हें मिशन जीत में शेयर करना चाहता हूं कि यार वो सारी चीजें तुम ना रिपीट करो। क्योंकि हमारे टाइम पे यार ऐसे कोई अपनी एज ग्रुप का बताने वाला था नहीं, जो सामने आके बता दे कि सुन भाई ठीक है टीचर लोग कुछ बोल रहे हैं, तू उनकी बातें नहीं सुनेगा, तेरे को लगता है वो बहुत बड़े हो गए हैं, उनकी तो एज गैप बहुत ज्यादा है हमारे बीच में उनके बीच में, तो तुम्हें लगता होगा कि यार टीचर्स की कौन सुने। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे से 4-5 साल छोटे हो तुम सब, है ना, 4-5-6 साल छोटे होंगे मेरे से तुम सब। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत कंपटीशन है। डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, बहुत कंपटीशन है। आगे जो तुम एग्जाम सोच रहे हो, अभी तो ठीक है 9th-10th में तो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में तो अगर 100 नंबर एक बच्चे के तो 100 नंबर लाखों बच्चों के भी हो सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन एग्जाम्स में रैंक 1 एक ही बच्चे की आती है, रैंक 2 दूसरे एक और बच्चे की आती है, ऐसे करके रैंक का सिस्टम होता है।
और उन्हीं रैंक्स के हिसाब से फिर आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। सिलेक्शन का एग्जाम नहीं कहते हैं, इन्हें रिजेक्शन का एग्जाम कहते हैं। ये एग्जाम सेट ही इस तरह से होते हैं कि आपको कैसे रिजेक्ट करा जाए, कि यार देखते हैं इसने 2 मिनट से कम में इस क्वेश्चन को करा है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकियों को रिजेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से मार्किंग होती है। तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से डरना नहीं है यार, ठीक है। आज तक तुम्हारे खानदान में जितनी मेहनत की हुई ना, उससे ज्यादा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, तभी तुम कुछ स्टैंड आउट कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो 2 साल है, ठीक है। तुम जेई में जाना चाहते हो, मतलब मिशन जीत में तो मैं जेई और नीट की बात कर रहा हूं, पर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद और भी करियर ऑप्शंस के लिए सोच रहे होंगे, एनडीए वगैरह, और आगे जो बच्चे कॉमर्स के होंगे वो अलग अलग फील्ड के सोच रहे होंगे। सब एग्जाम्स अलग अलग हैं, जरिया सिर्फ एक है, वो है मेहनत। 11वीं 12वीं में जितने बच्चे 11वीं 12वीं में आगे जा रहे हैं, हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमें इस फलाना आईटी में जाना है, इस फलाना एम्स में जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है। कुछ नहीं लिखा यार, किस्मत में होगा तो ही मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है, ठीक है। मैंने भी जेई की तैयारी करी थी, जेई का एग्जाम दिया था। जेई का एग्जाम देने के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी आईटी की फील्ड में, ठीक है। आईटी की फील्ड की इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने क्लास 10th का चैनल खोला। आज मैं क्लास 10th की मैथ्स पढ़ा रहा हूं। कोई लिंक है कहीं से किसी का भी? कुछ लिंक नहीं है। काफी मेरे मैक्सिमम बैच में जो भी दोस्त लोग थे वो सारे आईटी में ही अपनी जॉब वगैरह कर रहे हैं, मैं अलग निकल के आ गया हूं। तो जो लिखा होगा तुम वहां तक पहुंच जाओगे। एक चीज में कमी नहीं छोड़नी है, मेहनत करनी सीखनी है। ये 2 साल, ठीक है, मैं बिल्कुल मानूंगा बहुत लोग होते हैं कि यार एजुकेशन सिस्टम ऐसा है हमारा, ये ऐसा है, वो ऐसा है ना, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे ये नहीं होती बात, वो नहीं होती, सब साइड की बात है। मेन चीज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेहनत करना सीख जाते हैं। मुझे याद है जब मैं काफी बार मैंने अपनी 11th की गोटा की स्टोरी सुनाई है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या आया था दिमाग में, मतलब एक तो थोड़ा सा डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि यार मैं भी मेहनत कर रहा हूं, पर यार आसपास वाले बच्चे ऊपर बैचेस में जाए जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा पा रहा। ऐसा फील होता है, तुम्हें भी होता होगा कि यार भैया उससे ज्यादा मेहनत मैं कर लेता हूं, उससे ज्यादा मेहनत मैं कर लेती हूं, पर उसके नंबर आ जाते हैं यार, मेरे नहीं आ पाते। और वहां पे तो पूरा इकोसिस्टम ही ऐसा था कि सारे कंपटीशन है। अगर तुम सोचो पूरा हॉस्टल में अगर 150 बच्चे हैं तो 150 के 150 बच्चे तुम्हारे कंपटीशन है। फिर उसके बाद जब तुम कोचिंग में जाते हो तो अगर वहां 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो तुम्हें वहां दिख रहे हैं। ऑनलाइन में चलो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हें दिखता नहीं है, पर ऑफलाइन में वहां पे मैं रोड पे चल रहा हूं तो हमें वो देते थे, वो छाता देते थे, छाते जा रहे हैं हम तो हमें दिख रहा है हमारे आसपास बच्चे भाग भाग के पढ़ने जा रहे हैं। तो एक अलग लेवल का डर लगता था। तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था, पागल ही हो गया था भाई मैं तो मैं लिटरली बता रहा हूं, पागल हो गया था, पता नहीं क्यों गंजा हो गया मैंने कहा यार ये बाल नहीं सांभले जा रहे, पहले दिन उड़ाओ। फिर उसके बाद रात भर बैठ के पढ़ाई चल रही है, सही डायरेक्शन में नहीं हो रही थी, ये मैं बिल्कुल मानूंगा, सही डायरेक्शन में नहीं हो रही थी। अगर सही डायरेक्शन पता होती तो 11वीं सही हो जाती। पर हाँ ये था कि 11वीं में मैंने ये सोच लिया था कि यार ठीक है स्मार्ट वर्क नहीं आता है ना, हार्ड वर्क कर लूंगा, हार्ड वर्क के बाद समझ में आ जाएगा स्मार्ट वर्क कैसे होता है। तो अभी तुम सभी बच्चे जब 11वीं में जाओगे ना तो इनिशियली बहुत दिक्कतें आएंगी, तुम्हें लगेगा यार भैया इतना सारा सिलेबस है कैसे होगा, है ना, एक एक चैप्टर भैया इतना मुश्किल है, भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो ये बिल्कुल ही अलग चीज है, जो हमने 9th 10th में पढ़ी थी वो तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब चीजें अलग लगेगी। हार्ड वर्क मत छोड़ो, कोई बात नहीं तुम्हें नहीं आता है स्मार्ट वर्क, अरे आ जाता है सब समझ में, धीरे धीरे हर चीज समझ में आ जाती है। पर हाँ अगर तुम गेम से बाहर निकल जाओगे, अगर तुम मैदान ही छोड़ दोगे फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन क्या भैया जेईई नीट सब कुछ होता है क्या जीवन में, इसके ऊपर कुछ नहीं होता क्या? मैंने कहा बहुत कुछ होता है भाई सिर्फ करनी। पर अभी इस स्टूडेंट लाइफ में 11वीं 12वीं में अगर कोई एक चीज है जिससे तुम्हारी औकात बन सकती है ना, औकात एक वर्ड होता है ना, तो है अगर इस स्टूडेंट लाइफ में किसी एक चीज से तुम्हारी औकात बन सकती है तो वो है अपनी पढ़ाई में अच्छे मेहनत करना, पढ़ाई में अपनी तरफ से सबसे बेस्ट देना। अगर तुमने इस चीज में मेहनत करनी सीख ली ना, क्योंकि मेहनत एक वर्ड है, वो करना सीख लिया ना तो हर एक फील्ड में कर लोगे। आज अगर
मेरे से कोई बोल दे कि चलो रात भर बैठ के ये काम करना है, मान लो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, मिशन जीत से रिलेटेड है, नेक्स्ट टॉपर से रिलेटेड है, मेरे को कोई बोल दे कि यार देखो रात भर बैठ के नहीं काम करना है, मैं डरूंगा नहीं। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि कोटा में 11वीं में मैं रात भर बैठ के पढ़ाई करता था, मुझे आदत है उस चीज की, मुझे पता है कैसे करना है, मुझे पता है कैसे मैं आंखों के नीचे विक्स लगा के उठ जाता था। आज भी उठ जाऊंगा, कुछ इमरजेंसी आएगी तो शायद वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरे को काम नहीं आ रही है, शायद वो फिजिक्स में जो रोलिंग मोशन होता है कि ऊपर से रोल करता हुआ नीचे हमारा पूरा एक डिस्क चली गई, वो काम नहीं आ रहा है। पर हाँ, उस क्वेश्चन को करने के लिए जो रात भर मैं उठा था, वो जो मेहनत की आदत है वो काम आती है, वो जीवन भर काम आएगी। तो ये 2 साल जो है ना, ठीक है तुम्हारा कुछ गोल है, एक तरफ तुमने गोल रखी है कि हाँ यार भैया मेरे को जेई क्लियर करना है, मेरे को नीट क्लियर करना है, ठीक है, ये सब सेकेंडरी चीज है। मेन चीज है भैया जी तोड़ मेहनत करती है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना यार। 2 साल है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मतलब अब तुम कहोगे यार भैया पापा भी बोलते हैं कि बस 10th कर ले तो जीवन सेट है भैया, फिर पापा बोलते हैं बस 12th कर ले जीवन सेट है, फिर कहते हैं बस नौकरी लग जाए जीवन सेट है। मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, आगे के 2 साल है, मेहनत करनी अगर सीख ली ना तो हर चीजें ना उसके बाद मल्टीप्लाई होती जाएंगी और काम आती रहेंगी, हर चीज मल्टीप्लाई होते हुए समझ में आती रहेगी, और वो मेहनत से ना तुम कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लो। जरूरी नहीं है तुम्हारा प्लान होगा कि भैया मेरे को उस आईआईटी में जाना है, उस एम्स में जाना है, हो सकता है तुम्हारा वो प्लान हो, पर अगर उसके लिए तुमने मेहनत करनी सीख ली ना तो शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कोई और एक अच्छा प्लान बना रखा हो और वहां तक तुम्हें लेके चले जाए। ये सिंपल सी चीज है आगे के लिए जो तुम्हें दिमाग में रखनी है। गोल कुछ भी हो सकता है, सिंपल एक रूल, मेहनत करनी सीखो, जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी सीखो। बीच बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शन आएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, आजा बेटा इधर आजा, चल गेम खेल लेते हैं, चल यहाँ चले जाते हैं, चल आज वहां पे कर, सब चीज इंपॉर्टेंट है, करो, बाहर खेलना है खेलो, मूवीज देखनी है देखो, उसके लिए मना ही नहीं है, उसके लिए दिक्कतें नहीं है, पर एक लिमिट में। वो लाइन क्रॉस होती है ना, जब वो लाइन क्रॉस होती है ना, मैं बस एक चीज बोलूंगा, अपने आप से मक्कारी मत करो, सिंपल, अपने आप को धोखा मत दो। अगर तुमने अपने आप को धोखा देना शुरू कर दिया ना फिर कुछ फायदा नहीं। जब मैं कोटा में रहता था ना तो 1-2 बार पापा मम्मी ऐसे सरप्राइज विजिट कर देते थे कि देखते हैं क्या कर रहा है ना, पता नहीं पढ़ाई कर भी रहा है नहीं कर रहा है, होता है यार, सबके पेरेंट्स के दिमाग में रहता है यार इतने पैसे लगा के उसको भेज रहे हैं हॉस्टल में किसी और चीजों में तो नहीं लग गया, कभी रूम में ही नहीं है, नशे वशे करके बैठा है, बहुत सारी चीजें होती है कोटा में। अगर बच्चों को एक जगह तुमने बिठा दिया, सब पॉसिबिलिटीज है, तो कई बार ऐसे सरप्राइज विजिट कर लेते थे, आगे देख लेते थे, या तो मैं पढ़ता हुआ मिलता था या मैं सोता हुआ मिलता था, इन दोनों के अलावा और किसी कामों में नहीं गया। इससे क्या हुआ ना, माँ बाप के अंदर एक ट्रस्ट आ जाता है। तुम में से बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होगा कि भैया पापा मम्मी को कैसे समझाएं यार, आप तो बोल रहे हो कि ठीक है मेहनत कर लो, पर नंबर नहीं आ रहे तो पापा मम्मी को कैसे समझाएं भैया? पापा मम्मी तो इस चीज को नहीं देख रहे ना, सब देखते हैं, सब देखते हैं, उन्हें पता है तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो, अगर तुम कर रहे हो ना तो वही पेरेंट्स हैं तुम्हें आके रोकेंगे कि बेटा रुक जा, थोड़ी देर आके खाना खा ले साथ में। अगर तुम जेन्युइनली मेहनत कर रहे हो तो सब पेरेंट्स मान जाते हैं, हर पेरेंट मान जाता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अरे मेरे घर में कब महाभारत हुई थी क्या यार, जब मैं स्कूल अपने कोचिंग में था, वो उसमें था, कॉलेज में था, तो मैंने कहा मैं प्लेसमेंट ले लूंगा, मम्मी का इमोशनल ड्रामा शुरू। मैंने कहा मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, 2nd-3rd ईयर में बोल दिया ना मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ। मम्मी ने कहा ठीक है तू छोड़ दे कॉलेज, हमसे मत बात करियो, ये मत करियो, वो मत करियो, पहला पूरे खानदान का एक तो पहला इंजीनियर बनने जा रहा है, और तब भी तेरे अंदर ये चौड़ आ रही है, क्या है ये यूट्यूब, क्या है ये 1 मिलियन 2 मिलियन तो बहुतों के हो जाते हैं, तेरे अंदर क्या है ऐसा। तो बहुत बातचीत हुई बहुत, कहते हैं ना वो कोर्ट में होता है ना, तारीख पे तारीख, मैं लेके आया, मैं वकील बन के आया कि जज साहब ये चीजें हैं, देखो ऐसे ऐसे कर लूंगा, आगे ऐसे ऐसे पैसे कमा लूंगा। एट दी एंड एक वे आउट ये निकला कि हाँ यार तो अपनी डिग्री कर ले, उसके बाद तेरा जो मन करे वो करियो, तो घर पे एक डिग्री लेके आ जा। तो उन्होंने कहा डिग्री लेके आ जा, चलो ठीक है डिग्री के लिए थोड़ी मेहनत कर लेंगे, तो गए डिग्री लेके आ गए, संतुष्ट है, उस चीज में खुश है। आज वो हर चीज में साथ में सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ठीक है यार तुम नेक्स्ट टॉपर्स में जो करना चाह रहे हो वो करो, मिशन जीत करना चाह रहे हो वो करो। मिशन जीत जब लॉन्च हुआ था पापा साइड में खड़े थे नीचे स्टेज पे, जितने बच्चे अगर कोई दिल्ली से आया उसको दिखाओ, तो पेरेंट्स मान जाते हैं। पहली चीज ट्रस्ट बना लेना,
इन दोनों सालों में, ये जो 11वीं 12वीं में तुम जा रहे हो, इन 2 सालों में सबसे ज्यादा ट्रस्ट टूटता है पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर से। क्योंकि ये जो तुम चीजों में चले जाओगे ना कहीं कहीं, और तुम फिर पकड़े जाओगे कि ये पकड़ा गया, अब ये करता हुआ पकड़ा गया, अब वहां मूवी देखता हुआ पकड़ा गया, बोल के गया था ट्यूशन जा रहा हूं वहां पकड़ा गया है। यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे ट्रस्ट टूटता है, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट टूटता है। अगर तुम ये ट्रस्ट बनाए रखोगे कि हाँ यार पापा जो है या मम्मी जो है वो बोल के जा रहा हूँ वैसे ही कर रहा हूँ, तो हर चीज में आगे सपोर्ट मिलेगा। ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जितनी मेहनत करते हो तुम देखोगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ यार मेहनत अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, मेहनत अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है। वही पेरेंट्स है शुरू में शायद बोलेंगे कि हाँ यार हमें इस कॉलेज में जाने का गोल बनाओ, उस कॉलेज में, धीरे धीरे जब हमें दिखेगा कि हाँ मेहनत कर रहा है। तो मेरे पापा ने एक बार बोल दिया था जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, तो उन्हें दिखा दिया तो ऐसा ना हो कि लटा बटक जाए, इतना पागल हो चुका है। तो पापा ने बोल दिया था कि हमें तेरी कॉलेज से कुछ मैटर नहीं करता है, तो अपनी मेहनत कर बेटा, अपनी तरफ से बेस्ट दे, हमारे लिए उतना ही बहुत है। तो अगर उन्हें दिखेगा वो अपने आप तुम्हारा सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो एट द एंड उनके पास बात वही आती है, 2 साल है, क्रूशियल साल है जिंदगी के, मेहनत कर लो इसमें, अपनी तरफ से बेस्ट दे दो इसमें। मैं 24/7 तुम्हारे लिए खड़ा हूं, 24/7। जिस टाइम तुम बोलोगे ये यार देखो मैंने तुम्हें क्या बोला है, कोई बैच नहीं है यार अभी। अगर ऐसा होता तो हम लोग बैच ले आते कि चलो जी जेईई का बैच है, जी नीट का बैच है, जी 4000 में 5000 में ये बैच। अभी कुछ है ही नहीं, टीचर ही नहीं है अभी तो लोग ही नहीं है, अभी तो ऑफिस फाइनल हुआ है हमारा जाके, अभी कुछ नहीं है। हर चीज धीरे धीरे विद टाइम बनाएंगे, विद टाइम अच्छे लोगों को साथ में जोड़ेंगे। तुम्हारे लिए जो बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट हम देने के लिए ट्राई करेंगे, उसके लिए हम खड़े हैं। जो गाइडेंस शायद हमें नहीं मिली थी, टीचरों को क्या होता है यार मैक्सिमम, मतलब अब उनके इंसेंटिव्स इस तरह से बनते हैं, उनके जो जेईई नीट के मैं बात कर रहा हूँ, कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं उनका ये है कि यार उनको सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो वो लोग सिलेबस कंप्लीट करवाने पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमने भी यही देखा था, कोई ये गाइड नहीं करता है कि यार पढ़ना कैसे है। अरे इतना बड़ा पहाड़ आ गया है, एक ट्रिग्नोमेट्री जो 10th में पढ़ी थी जिसमें से 3 फॉर्मूले थे, 300 फॉर्मूले आ गए हैं। इन 300 फॉर्मूलों को कैसे याद करें, कैसे समझें, कैसे जो अलग अलग टाइप के सवाल आ रहे हैं इनको कैसे अटेम्प्ट करें, ये गाइडेंस देने के लिए मैं तुम्हारे साथ मिशन जीत पे खड़ा, हमेशा खड़ा। आगे जो चीज, जिस चीज में तुम्हें लीड चाहिए होगी गाइडेंस की, जिस चीज में तुम्हें हेल्प चाहिए होगी गाइडेंस के लिए मैं खड़ा, यही है। मैंने कितना 15 मिनट बोल के मैंने 20-25 मिनट में बोल कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं सोच के आया था आप सभी के साथ डिस्कस, मतलब मैं बोलूं शुरुआत में। अब इसके बाद मैं ऑडियंस में मतलब एक बार पूछना चाहता हूं कि अगर किसी का कोई सजेशन, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ शायद सारे आंसर मेरे को ना पता हो, मैं बिल्कुल इस चीज को एग्री करता हूँ, मेरे को भी हर चीज का आंसर नहीं पता हो कि आप पूछ लो कि भैया ये बताओ कैसे होगा, शायद मेरे को ना पता हो। ये एक ओपन डिस्कशन की तरह मैं रखना चाहता हूँ, कुछ 8-10 सवाल हम लेंगे या सजेशंस हम लेंगे, उनमें शायद आपके पास ही किसी और के पास आंसर भी हो तो वो हाथ खड़ा करके आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कुछ अगर किसी के दिमाग में हो। माइक्स हैं अपने पास 3-4? रुक जा, माइक को चलो किससे बोलेगा तू, माइक तो चाहिए ना तुमको। आराम से बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, आराम से। कितने जो स्कूल के बच्चे हैं, गायत्री स्कूल के बच्चे हैं? वाह यार, तुम जानते हो मेरे को? कि फिर अच्छा कोई ऐसा है जो मेरे को बिल्कुल नहीं जानता है कि कोई दोस्त खींच के ले आया कि आजा यार टाइम पास करेंगे, तुम नहीं जानते? नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हो, आप नहीं जानते? नहीं जानते। कैसा लग रहा है, बोर लग रहा हूं है? ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन आ गया पका रहा है, बोर लग रहा है, नहीं लग रहा है। चलो आ जाओ, हाँ जी, पहला क्वेश्चन या सजेशन जो भी तुम चाहते हो। 10th की कैसी लग रही है तुम्हारी तैयारी, ये भी तो बता दो। बढ़िया, बहुत बेकार, बढ़िया, ये फेल होने वाले हैं, बस टॉप करेंगे, बस कहना चाहता हूँ। अबे मेरा फोन करेंगी, हाँ जी बताइए।
और ऊपर रखो माइक। सर मैं नमस्ते सर पहले। नमस्ते। दूसरा ये है कि अब हम और आपके बीच में हमारा एक कनेक्शन है बहुत ही तगड़ा। उसका एक रीज़न है बिकॉज हम सब चाहे 10th हो 11th हो बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। जब हमें लगता है कि सुबह क्लास हो रही, क्या पेज में रात भर तक पढ़ रहे हैं, सुबह उठ के, ये सारी चीज़ें एक कनेक्शन बैठ जाता है हमारे बीच में। तो और अभी 11th के लिए भी जो टीचर आया उनसे भी ये हमारा हो रहा है, फील हो रहा है। बट ये मेरा सवाल है कि ये जो बॉन्ड है स्टूडेंट का और टीचर का, अब हो सकता है कि आपकी तरह नहीं, अपने मेहनत की तरह भी, जैसे आप बात करते हो मेहनत की, हम अपने आप में आपको देखते हैं कि तो लगता है कि हम मुझे मेहनत करने में मजे से पढ़ रहे हैं, तो और प्रशांत भैया वो खुशी से पढ़ रहे हैं, मेरा सोचना सिखा रहे हैं। तो क्या ये बॉन्ड जो टीचर्स वगैरह होंगे वो बना पाएंगे? जो टीचर और आएंगे हाँ। साथ में, वो उनके बारे में पूछ रहे कि वो बॉन्ड हम लाएंगे कैसे, हम लाएंगे ऐसे। वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी कोई नहीं है, अभी मिशन जीत में अकेला मैं खड़ा हूँ, बाकी हमारी टीम है, मतलब एकेडमी की बात कर रहा हूँ, अकेला मैं खड़ा हूँ। साथ में जो और लोग लाएंगे, जो टीचर्स लाएंगे, वो हम लाएंगे इस तरह से जो तुम्हारे साथ वो बॉन्ड बना सके, जो तुम्हारे साथ, जैसे मैं तुम्हें मैथ्स की क्लास में बीच बीच में पढ़ाता हूँ ना, स्टोरी सुना सुना के, है ना? हाँ बोल रहे हैं। तुम बोल रहे थे गाइडेंस की, तो कहना हम पढ़ाता है। तो ये जो बीच बीच में मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, ये जो बीच बीच में मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, तुम्हें पता है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाने का मोटिव ये नहीं होता कि उसमें से पेपर आ जाएगा। अरे क्लास 10 के पेपर में है ही कितना सिलेबस यार, वो तो सबको पता है क्या क्या चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं, जो आनी है, सबको पता है। मेन मोटिव ये होता है कि तुम सभी को यार एक बेस बनाया जाए, जो हमें पता है ना कि 11वीं में जाके तुम इतनी मेहनत करनी है, उसके लिए थोड़ी आज 14 दिन की मैराथन ही करवा ली जाए। तो वो 14 डेज मैराथन का मोटिव ये होता है कि हाँ भाई हर शाम को 7 बजे या 6 बजे या 8 बजे जो भी टाइम डिसाइड होगा, उस समय पे 14 दिन कंसिस्टेंसी के साथ तुम बैठ पाओ, वो कंसिस्टेंसी बनानी है। सिलेबस तो होता रहेगा। चलो आ जाए तुम क्वेश्चन बनाओ। हेलो हाँ सर, मेरा बेटा उत्कर्ष अरोड़ा, हाँ जी। ये 10th में है, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत थैंक यू। विदाउट एनी कोचिंग, कोई भी मतलब बाहर से कोई कोचिंग नहीं ले रहा है, खुद से स्टडी कर रहा है। सारे रिश्तेदारों को पहले तो यही हैरानगी हो रही है कि बिना किसी कोचिंग के बोर्ड दे रहा, सिर्फ यूट्यूब पे करके कोचिंग पे, बस इसी से ही हो जाएगा। लेकिन सर जब मैं उसकी नोटबुक में देखती हूँ उसका एम, इसके फर्स्ट पेज पे 100 आउट ऑफ 100। सर डेफिनेटली पहले तो आपने मुझे उसकी छवि दिखाई देती है, और मुझे लगता है कि शायद हमें मौका मिलेगा कि हम भी आपको बुला सकें कि आप हमारे घर पे आओ। सर देखो इसने 10th में कितने अच्छे मार्क्स लिए। हम सीरियसली जब देखते हैं आपकी वीडियोस, मैं खुद इसके साथ बैठ के देखती हूँ वीडियोस, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई शायद कोई फरिश्ता मेरे बच्चे के लिए उसकी लाइफ में आया है। शुभकामनाएं। लेकिन सर मैं आप जैसे मेहनत के बारे में कहते हैं, जो मेहनत आपने सिखाई है बच्चों को, तो मेरी बस यही सजेशन रहेगी कि जो ये 9th 10th के बच्चों को जो आप मेहनत सिखा रहे हैं, आप प्लीज इसको मत छोड़िएगा। इन बच्चों पे फोकस बिल्कुल वैसे, ये आगे बढ़ जाएंगे, मेरा बेटा आगे बढ़ जाएगा मुझे पता है, लेकिन जो आगे आएंगे बच्चे, जब जो उनका बेस जो रेडी होगा वो मेरी 9th 10th से ही रेडी होगा। तो उस चीज के लिए मेरा बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वो मेहनत वैसे ही रखिएगा, वो एंथुसियाज्म जो आप बच्चों में अभी कर रहे हैं वो प्लीज वैसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपर्स, मैंने आपको जब उस दिन हमने मिशन जीत का वो लॉन्च करा था दिल्ली में, तब मैंने क्लियरली इसलिए ये बात बोली थी कि नेक्स्ट टॉपर्स इज फॉर क्लास 9th and 10th। नेक्स्ट टॉपर्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9th and क्लास 10th। तो मैं, प्रशांत भैया, दिगार सर, हम तीनों लोग तो वही हैं। मिशन जीत एक नया मिशन या नया वेंचर बोल सकते हो, जो कि हम कोशिश करेंगे स्पेशलिस्ट बन जाए फॉर JEE। जैसे नेक्स्ट टॉपर स्पेशलिस्ट है, जैसे तुम आसपास अपने बच्चों से, दोस्तों से पूछते हो, वो बताते होंगे कि नेक्स्ट टॉपर स्पेशलिस्ट है 9th 10th के लिए, ऐसे ही हम मिशन जीत को बनाना चाह रहे हैं। जीत का मतलब ये है, JEE प्लस नीट इज जीत।
तो उसके लिए हम इसको प्लेटफॉर्म को बेस्ट बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि आगे जो है ना, अरे तुम अभी जाओगे ना, तुम अपने 11th वाले बच्चों से, दोस्तों से पूछना कितना अभी जब तुम लोग 11th 12th में जाओगे ना, जब तुम देखोगे कि किस तरह की गंदी मार्केट है, क्या कर दूं? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेलो भैया। रुकना नहीं होता, मैंने क्या बोला तुम्हें, बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगी, रुकना नहीं है, ठीक है? चलो। हेलो भैया। हेलो हेलो। भैया मैं अभय नारायण कॉलेज आज की थी एंड आपने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, पहले थैंक यू सो मच। एंड भैया मैं ये बोल रही हूँ, जैसे अगर कोई जेई या नीट के अलावा प्रिपरेशन कर रहा है, कोई और स्ट्रीम ऑप्ट कर रहा है, हाँ। जैसे ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स, तो गिरिराज सर खड़े हैं उसके साथ क्वेश्चन। बिल्कुल है। तो सर ये पता नहीं था, ऐसे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं दिग्राज सर को बोलूंगा एक बार क्लास में आके अनाउंस कर प्लीज सर, प्लीज, थैंक यू सो मच, आई प्रिविलेज, थैंक यू सर। देखो आराम से बैठे रहना अपनी सीट्स वगैरह पे जहाँ पे भी हो, क्योंकि दिल्ली में भी क्या हुआ था इस बार भी इवेंट में, वही हुआ कि इवेंट एकदम कैंसिल करना पड़ा था। हेलो सर। हेलो भैया। कहाँ पे हो जी? भैया हाँ 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 बताओ। भैया मैंने प्री बोर्ड में भी काफी मेहनत की थी, ठीक है। लेकिन मेरी तो भी 40% बनी थी, 40% की बनी थी सर। अच्छा अच्छा। और क्या कहते हैं, मैंने एसएसटी का भी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अंदर से, जिस तरह से सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है। तो रात को याद करता हूँ, सुबह भूल जाता हूँ। दिग्राज सर से नहीं पढ़ते हो तुम शायद? नहीं भैया। नहीं पढ़, यू हैव योर आंसर। देखो मैं बताऊँ, आपसे पढ़ता हूँ भैया सर मैं। अरे एसएसटी में सब में पढ़ेगा यार, मेरे को खुद नहीं आती, मैं कहाँ से पढ़ा लूंगा। मैं तो एसएसटी 7 दिन में पढ़ता था। उस समय बुक आती थी फ्लो चार्ट वाली, मैं फ्लो चार्ट रट के जाता था, जाके अपने हिसाब से आंसर लिख देता था, पूरे भी नंबर आ जाते थे, पता नहीं कैसे। तो देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना सबसे पहला वाला, कि भैया प्री बोर्ड में बहुत मेहनत करी, 40% ही आए, ठीक है? बैठ जाओ एक बार, मैं बताता हूँ। अब भैया को ध्यान से फोटो भी, क्या फोटो भी। फोटो लाओ, राजीव ले लेना फोटो। देखो अभी इधर भी देख लो, सारे पीछे देखने लगे, क्या दिख रहा है पीछे? कौन दिख गया तुम्हें पीछे? अपने आप ही कुछ भी। सुनो। Good afternoon, sir. बोलिए। My name is Kavya. And कल मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड है। बताइए जी। प्री बोर्ड 2 है, प्री बोर्ड 1 में मेरे 60 में से 59 आए। ठीक है। एक आइडिया से एमसीक्यू वगैरह में करते हैं, बट स्टिल लाइक अगर मैं सिंपल में सॉल्व करती हूँ तो एक ना एक गलती निकल ही जाती है, गलती भी नहीं, एक क्वेरी, बट एग्जाम में हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। बट जब मैं सेकंड बार रिवाइज करती हूँ पेपर, तो मेरी मार्क्स जल्दी निकली, जो कि मैंने सेकंड बार रिवाइज करके लिख दिया, बट वो सिली मिस्टेक में प्लस माइनस में गलती हो जाती है। इंस्टेड ऑफ इतनी प्रैक्टिस में काफ़ी सारे जो आप ऑनलाइन क्लासेस में करते सब करने की बात की, टोटल मार्क्स कट भी जाते हैं। एंड मेरी मम्मी की वो टोटल मार्क्स क्यों कटे गए, जब तुम ना पढ़ रही है तो क्यों कटे गए, तो क्या करूं इसका? देखो सिली मिस्टेक मेरे पढ़ाने से नहीं सही होगी। सिली मिस्टेक सही होने के लिए सिंपल सी चीज है, जितने मैक्सिमम तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उसी से सही होगा। शुरुआत में जैसे मैंने बताया था, जब एक बार अरब बैच जब शुरू हुआ था, तो मैंने ये बताया था कि कैलकुलेशंस की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करो यार। दिन में 5 सवाल उठाओ, ठीक है? रैंडमली अपने आप ही 5 सम लिख दिए, जैसे बचपन में करते थे ना, 4 3 7 8 मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 8। करो 4-5 सवाल सुबह उठ के, अपने आप करोगे। क्योंकि दिक्कत क्या आती है ना, जैसे ही हम क्लास लेक्चर में आ जाते हैं, हमें ये लगता है कि यार मैं कैलकुलेशन करूंगा। तुमने देखा मैं क्लास में अगर 17/4 भी होता है, कई बार तो मैं करके दिखाता हूँ, वो इसलिए करके दिखाता हूँ कि यार ये ईगो वाली बात मत ला कि भैया यार इतने बड़े हो गए, मैं मल्टीप्लिकेशन ऐसे करूंगा तो कोई देख लेगा, अगल बगल वाला तो कोई नहीं देख रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगेगा उसको अपने एग्जाम की पढ़े, तुम्हारे एग्जाम की पढ़ी है? तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी हुआ करें ना, उनको दिन में मैं कहूँगा बस 5 सवाल अपने आप रैंडमली बनाओ और उन 5 सवाल को सुबह उठ के अपने आप सॉल्व करो। जितनी ज्यादा करोगे, कुछ है अपने पास 17 तारीख का एग्जाम है, महीने से ऊपर है, जितनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा।
हेलो भैया, हेलो जी। हेलो भैया। हाँ जी, हेलो हेलो। सर भैया, माय नेम इज कृति खंडेलवाल। हाँ जी। भैया, मुझे आपसे ना एक बात पूछनी है कि सभी लोग आजकल नीट जेई इन सब के पीछे पड़े हुए हैं कि नीट करवा लो, जेई करवा लो। आजकल पेरेंट्स का भी यही है। और बताओ, और तो रिलेटिव्स भी अगर घर पे आते हैं तो पूछते हैं, भाई तुम बताओ तुम्हारी स्ट्रीम क्या है। उनको बोलो कि नहीं भाई, हमें ना साइंस में जाना, ना कॉमर्स में जाना, हमें ह्यूमैनिटीज में जाना है, तो बोलेंगे ह्यूमैनिटीज, शादी करनी है क्या बड़े होके, और कुछ करना नहीं है। अब उन्हें कौन बताएगा कि शादी के अलावा भी ह्यूमैनिटीज में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। शादी ऑप्शन होते हैं तो शादी ऑप्शन भी होता है। एक बात बताइए भैया, अगर किसी को कुछ करना है जैसे सीयूईटी, क्लेट, नीट, जेईई के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। अभी तो पूरा स्पीच थी, उसमें मैंने एंड में यही बोला कि लोगों के दिमाग में है कि यार जेईई, नीट, इसके अलावा कुछ और चीजें होती है। अरे बिल्कुल होती है, जो भी तुम्हारा गोल है। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जो चीज पे ज्यादा मैक्सिमम लोग जाते हैं ना, तुम्हें दिखेगा कि यार हाँ मैक्सिमम लोग जेईई और नीट में जा रहे हैं, तो तुम्हें दिखेगा कि यार उसकी हाइप ज्यादा है। अगर क्लास के मैक्सिमम बच्चे उसमें जा रहे हैं, दिखेगा उसकी हाइप ज्यादा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे लिए कुछ और चीज बनी है, तो उसके बारे में एक बार बैठ के, चैटजीपीटी हो गया, गूगल हो गया, उसके बारे में बैठ के एक बार देखो, पढ़ो कि यार क्या क्या चीजें हैं जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। जरूरी नहीं है पेरेंट्स भी एकदम शुरू में मान जाएंगे तुम्हारा कुछ अलग ही टाइप का ड्रीम होगा उसके लिए, पर हाँ वो कागज अगर तुम लेके जाओगे ना जिसमें तुम वो रोड मैप बना दोगे, तो उन्हें दिखेगा कि हाँ यार इसने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, रिसर्च करिए कि कैसे वहां तक पहुंचना है। अगर वो दिखेगा तो वो भी एग्री कर जाएंगे। बिल्कुल तुम एक भैया। बार बैठ के देखो तो क्या क्या और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। देखो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। देखो मैं तुम्हें फिर बोलता हूँ, अभी जो तुम क्वेश्चंस पूछोगे उन क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन हो सकते हैं कि भैया ये बता दो जेईई की कट ऑफ क्या होती है, ये बता दो भैया नीट की कट ऑफ क्या होती है, भैया कितने उसमें सीट होती है, कितना। ये सारी चीजें बताने के लिए तुम्हारे पास, अगर तुम्हें ये भी मेरे से पूछना पड़ रहा है मतलब तुम अपने गोल के लिए सीरियस नहीं है। अगर तुम्हें कौन सा एग्जाम है उस एग्जाम की फुल फॉर्म ही नहीं पता है, मतलब तुम उस गोल के लिए सीरियस नहीं हो। सिंपल सी चीज है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया ये दो स्ट्रीम के अलावा भी एक और चीज है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो उसका पूरी पीएचडी करनी पड़ेगी, तब तुम जाके सामने लोगों को दिखाओगे, तब उस चीज के लिए वो एग्री करेंगे। बिना उसके तुम कहो कि यार कोई और सामने आके मेरे को बता देगा, उससे तुम्हारी सीरियसनेस नहीं। भैया आप कब लाएंगे ऐसा प्रोग्राम हमारे लिए? कौन से के लिए बताओ? क्लैट। क्लैट के लिए ठीक है, मैं दिलासा से बात करता हूँ। सर प्लीज भैया, प्लीज। जैसे मैंने बताया बच्चों को, मैं मिशन जीत पे आया हूँ, ठीक है। हम 3 लोग हैं, ठीक है। मैं हूँ, दिग्राज सर है, प्रशांत भैया आपके। हम 3 लोग हैं, हम तीनों की अलग अलग स्पेशलिटी है। तो जहां जहां तुम लोग कहोगे, जैसे जैसे हमें आगे और चीजें दिखेंगी, बच्चों की डिमांड दिखेगी, हम वैसे वैसे चीजों को लेके आएंगे। और बताओ। हेलो भैया। माइक तो बोलिएगा। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जितना आपने पढ़ाया है उससे ज्यादा बहुत चीज सीखी है मैंने आपसे। थैंक यू जी, थैंक यू आपने वो वीडियो बनाई कैसे हेल्प करनी है। जी। मेरी एक प्रॉब्लम है, वो बताइए। पढ़ाया बहुत कर- एक सेकंड बच्चों, शांत रहना थोड़ा, बताइए। मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, पर एक डर होता है अंदर से कि शायद ना हो पाए वो चीज। मतलब मुझे रीड करना है और मैं मेहनत बहुत करी पर नहीं हो पाई वो चीज, तो क्या करें? देखो ये जो एक और बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर नहीं दे पाया था। एक बार आप बैठ जाओ, अभी रुक जाना, किसी को माइंड मत देना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। सब लोग सुन रहे हो, स्टोरी टाइम सुन लो यार। क्लास में बोलते रहते हो, यहाँ पे लगे हुए हो चिल्लाने। देखो क्या हुआ था कि जब मैं कोचिंग में गया था ना 11वीं में, तो हमारा सबसे पहला टेस्ट तो बहुत आसान होता है। मैंने तुम्हें स्टोरी शायद बताई थी। पहला टेस्ट बहुत आसान लेते हैं कोचिंग वाले, जिससे बच्चों को लगे कि वाह यार उसकी कोचिंग बहुत अच्छी चल रही है, वो कोचिंग से रिफंड ना ले। तो मेरे पहला टेस्ट हुआ, मेरे पहले टेस्ट में जहाँ बच्चों के 360 में से 355 340 आ रहे थे, मेरे 200-250 आए थे, ज्यादा नहीं आए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे एग्जाम हुए, है ना। अप्रैल में मैंने ज्वाइन करा था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इन 4-5 महीनों में खूब एग्जाम्स हुए, और मेरे जो नंबर थे ना वो ऐसे थे 250 के बाद मेरे नंबर आए 200 के बाद नंबर आए 150,
फिर नीचे गिरते गए 120, 110, 100, 109, इस तरह से नंबर चल रहे थे मेरे। तो मेरे को भी ये लगा कि यार मेहनत तो पूरी चल रही है, मेहनत तो अच्छे से कर रहा हूँ, पर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर रक्षाबंधन का टाइम आया, ठीक है, अगस्त में आता रक्षाबंधन, है ना भाइयों, आते हो ना स्कूल में। तो अगस्त में रक्षाबंधन का टाइम आता है, रक्षाबंधन में छुट्टी मिलती है कोटा में 3-4 दिनों की, ठीक है। तो मैंने ये सोचा मैं छुट्टी में घर नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पे बैठ के हॉस्टल में बैठ के सारी चीजें एक बार रिवाइज करूंगा, अच्छे से रिवाइज करने के बाद चीजों को समझूंगा और रक्षाबंधन के बाद जो अगला टेस्ट होगा ना उसमें बेहतरीन नंबर लेके आऊंगा। हमारा पूरा हॉस्टल खाली हो गया था, सिर्फ मैं था और मेरे सामने वाला था, वो भी मेरे से इन्फ्लुएंस हो गया कि ठीक है ये नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जा रहा। तो हम दो थे पूरे हॉस्टल में और हम दोनों ने ना जी तोड़ मेहनत करी, मतलब सारी चीजें रिवाइज कर दी, सारे मॉड्यूल रिवाइज कर दिए, सारे क्वेश्चन रिवाइज कर दिए, जितनी नोट्स थे वो रिवाइज कर दिए, जितनी डीपीपीज हमें मिली हुई थी सारों एक बार वापस से जल्दी अटेम्प्ट कर लिया। 3-4 और हमने अलग अलग बुक्स भी देख ली उस चैप्टर की जो अपनी सिलेबस हमारा हो गया था। तो वो 3-4 दिन ना हमने अच्छे से मेहनत करी। रक्षाबंधन के बाद टेस्ट हुआ, फिर से 360 नंबर का टेस्ट था, मेरे नंबर आए 360 में से 125। तो तुम सोचो कितने आ रहे थे, 110, 109 नंबर आ रहे थे, ठीक है। 3-4 दिन एक तो रक्षाबंधन की छुट्टियां सेक्रीफाइस करी, उसके बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आई, 125, 120 नंबर आए। तो क्या इसका मतलब ये था कि मेहनत खराब चली गई? मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी, मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। शायद वो 3-4 दिन जो थे ना वो एक टर्निंग पॉइंट था जिससे कि मेरे को ये समझ में आ गया कि हाँ यार किस लेवल की मेहनत हो सकती है। इससे पहले मैंने जीवन में कभी भी ना रात भर उठ के पढ़ाई नहीं करी थी, उस टाइम पे करी। उस टाइम पे मैंने सोचा ऐसा करते हैं पूरी रात उठते हैं, पूरी रात पढ़ाई करेंगे। मैंने बहुत सुना था, आसपास वाले जो दोस्त लोग थे वो बताते थे रात में कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बैठता है भाई, रात में बैठ के पढ़ियो। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। पूरी रात बैठ के मैं उठ के मैंने सारी चीजें रिवाइज करी, है ना। सुबह उठ के फिर 4 घंटे सो गए, फिर उठ के चीजें रिवाइज करी, फिर 2 घंटे सो गए, फिर 4 घंटे रिवीजन करा, फिर 2 घंटे सो गए। तो इस तरह से मैंने ऐसे टुकड़ों में नींद ले लेके अपनी चीजों को कवर करा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं करा था, इससे पहले कभी इस लेवल की मेहनत नहीं करी थी। तो ये जो 3-4 दिन की छुट्टियां थी रक्षाबंधन की, जिसमें मैंने सेक्रीफाइस करा घर जाना, ये वेस्ट नहीं गई थी। इससे मेरे को एक ऐसी आदत, एक ऐसी ट्रिक पता चल गई कि हाँ यार सिलेबस को जल्दी कैसे कवर करा जा सकता है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि मैंने 40% किया है, बहुत मेहनत करी थी, एकदम रिजल्ट नहीं दिखेगा। पहले दिन तुम बॉडी बनाने जाओगे, जाके 5 किलो का डंबल उठाओगे, अगले दिन दर्द ही होगा ना। शुरुआत कैसे होती है? स्लोली शुरुआत होती है। 2.5 किलो से 5 किलो जाओगे, 5 किलो से 7.5 किलो, 10 किलो, थोड़ा दिन जाने लग गया तो पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे शुरुआत होती है, धीरे धीरे तुम देखोगे यार 15 किलो भी भारी नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही सेटिंग शुरू करो कि भाई मैं 2.5 घंटे बैठना शुरू कर दिया, अब 2.5 घंटे का मैंने 2 घंटे 45 मिनट करा, फिर 2 घंटे 45 मिनट का मैंने 3 घंटे की सेटिंग शुरू करी। ऐसे ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तब रिजल्ट आना शुरू होगा, पहले दिन से रिजल्ट नहीं है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कौन है? माइक कर रहे हैं। हेलो हाँ जी बताइए, आराम से बैठिए। हेलो हेलो भैया। हाँ जी भैया इधर 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 इधर। हाँ जी भैया माय नेम इज याशिता सिंह, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैंने 10th क्लास में टेक्स्ट टॉपर्स का आरंभ बैच किया था और मेरे को 93% आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया आप तीनों ने और मैं अपने स्कूल टीचर्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने भी मेरे डाउट सॉल्विंग में बहुत हेल्प करी थी। बाकी अभी जैसे मैं 11th में हूँ और आपने बोला कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ये रियलिटी है। और 10th में लाइक अगर आप एक दिन भी किसी चैप्टर को पढ़ोगे तो हो जाता है, लेकिन 11th में ऐसा होता नहीं है। तो रिवीजन में भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि जिस चैप्टर को पढ़ भी रखा था वो बाद में रिवाइज करने में एकदम नया लगता है। तो रिवीजन कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 10th वाले एक बार मात्रा करना, कितने जो बैच में रेगुलरली पढ़ते हैं, रेगुलरली बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं लेके छोड़ दिया भैया, ठीक। मैं तुम्हें पता है तुम्हें डीपीपी क्यों मिलती है? डीपीपी क्लास 10th में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, हमें सबसे पहली बार लेके आया था। क्योंकि मेरे को ये लगता था कि यार जब ये बच्चा 11वीं में जाएगा ना
तब इसको ये चीज में दिक्कत आएगी कि कैसे पिछले क्वेश्चन रिवाइज करें, कैसे पिछले चैप्टर रिवाइज करें। तो ये जो डीपीपी का कॉन्सेप्ट है, डीपीपी का मतलब ये हो गया, मान लो चौथा चैप्टर चल रहा है, तो मैं चौथे चैप्टर में जो डीपीपी देता हूँ ना, उसमें चैप्टर 1 के क्वेश्चन भी होते हैं, 2 के क्वेश्चन भी होते हैं, 3 के। देखा है ना डीपीपी में ऐसा होता है। ये क्यों होता है? जिससे कि आप अगर 4th वाले चैप्टर पे हो और आपके डीपीपी में, मान लो आप वर्कशीट कर रहे हो, डीपीपी एक तरह की वर्कशीट होती है, जो नहीं जानते उनको बताता हूं, एक तरह की वर्कशीट होती है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि यार इस वर्कशीट को करते हुए जैसे चैप्टर नंबर 2 का सवाल नहीं बन रहा है, तो वो चैप्टर नंबर 2 का सवाल जहां पे तुमने सॉल्व करा था, जब हमने थ्योरी करवाई थी, तो वो चैप्टर 2 का तुम एक बार वापस जाओगे, थ्योरी को पढ़ोगे, फिर आगे वापस इस चीज को अटेम्प्ट करोगे। जेई और नीट में, मिशन जीत में भी हम इस चीज का ये ध्यान रखेंगे कि कैसे तुम्हें रेगुलर डीपीपीज मिल जाए और उन रेगुलर डीपीपीज का कैसे तुम्हें सॉल्यूशंस और डिस्कशंस हो सके। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे बच्चे ने बताया 10th में तो ठीक है 14 चैप्टर्स हैं बस, एक 3-3 घंटे के चैप्टर होते हैं, 3-3 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 11th में ऐसा नहीं होगा। 11th में 3 घंटे में कोई चैप्टर नहीं खत्म हो सकता है। 11th में अगर स्पेशली अगर तुम कोचिंग ले रहे हो या फिर तुम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एक चैप्टर में इन डेप्थ तुम्हें जाना पड़ता है। तो वो इन डेप्थ जाने के लिए कैसे रेगुलर डीपीपीज हो जाए, रेगुलर डीपीपीज में चौथे नंबर का चैप्टर चल रहा है, तो कैसे उसमें पहले, दूसरे, तीसरे तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस हो और वो तरीके से फिर आगे सिस्टमैटिकली चले, ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे आप पिछले चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, अगर कुछ पेरेंट्स हैं जो कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ चीज बताना चाहते हैं तो प्लीज। भैया एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। भैया मैं 9th क्लास से आपको फॉलो कर रही हूँ। मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, हाँ जी, बट जब से 9th क्लास से आपको फॉलो किया है, 10th क्लास के प्री बोर्ड में मैंने 97.5% स्कोर किया है। बहुत बढ़िया। मेरे सारे टीचर्स मतलब वो थे कि ये बच्चे नहीं कर सकते, सारे टीचर्स ने बोला ये नहीं कर पाएंगे, बट आपके लेक्चर से मैंने 9th में कोई बेस्ट नहीं लिया था, लेकिन आपके 14 डेज मैराथन ने मुझे इतनी सपोर्ट करी, जिज्ञास सर और प्रशांत सर की वजह से आज मैं 97.5% ला पाई और मैं आपसे वादा करती हूँ ऑल इंडिया 11 में आपको बुलाऊंगी। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। भैया एक क्वेश्चन था कि बताइए, आराम से आराम से आराम से। भैया मेजॉरिटी हाँ बताइए बताइए। बताओ बताओ बताओ। गुड आफ्टरनून भैया। भैया मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ, मैंने आरएम भी लिया था, अभी मैं भी हूँ। इवन तो जैसे आप रोज डीपीपी देते हो वो भी प्रैक्टिस करती हूँ और आपने बुक सजेस्ट की थी उनको भी लगाया, बट हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी परफेक्ट की है, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ी, और कहीं ना कहीं एंड में एक ना कॉन्फिडेंस का वो लैक होता है कि हमें तो लगता है कि चैप्टर ना हमें आता नहीं है या फिर हम अभी बिल्कुल उसके पीक पे एक्सपर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो एक लैक आता था कि मैं प्री बोर्ड हो रही हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन भी पूरा हो चुका है, बट जब प्री बोर्ड देने बैठी तब कॉन्फिडेंस ही नहीं था और उस चक्कर में पूरा पेपर खराब कर दिया। ठीक है, देखो मेन चीज कहना पहला जो तुम बोल रहे हो कि उस चैप्टर में एक्सपर्ट तो 1-2 सालों में कोई नहीं बन पाएगा, ठीक है। टीचर लोग भी हैं वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, वो भी कहते हैं कि धीरे धीरे नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है एक्सपर्ट बन पाओगे, पर हाँ कॉन्फिडेंस की जो बात है ना, अब आगे जो भी जितने बच्चे 10th के तुम जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ध्यान से सुनो, रिवीजन कैसे करनी है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अगर तुम रिवीजन करने के लिए ये सोच रहे हो कि मैं बैठ के वापस से पूरा चैप्टर पढ़ूंगी या वापस से बैठ के सारे चैप्टर के नोट्स रिवाइज करूंगा, ये तरीका नहीं होता रिवीजन का। रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है